Hello everyone. Today I am going to present a very repeated exam, Chennai Mathematical Institute 2020 paper, in which I have taken part A today. So there are two parts in the paper. So in part A, little bit easier questions are there compared to part B, in which few subjective questions, subject type questions are asked. In part A, they ask mostly objective, but in the form of fill up the blanks. But questions are good in both the parts, even part A also. So part A में there are 10 questions, each of 4 marks. You can see the instruction given here, जो original paper में आता है. So let's see the paper. How is the paper? So my name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. This is my detailed introduction. Coming to the paper. So last week I came up with the Indian Statistical Institute paper 2020, part B and part A in the previous weeks. So in the next week also I'll come up with the same 2020 CMI part B. Alright. So coming to part A, first question, the question number 1, there are total 10 questions, one by one we'll see. Each student in a small school has to be a member of at least one of the 3 school clubs. Okay. It is known that each club has 35 members. Alright. सारे club में, हर club में 35 members. There are three clubs. ठीक है. 3 school clubs. It is not known how many students are members of 2 of the 3 clubs, but it is known that exactly 10 students are members of all the 3 clubs. What is the, if I take ABC as the different club names, sets, then A intersection B intersection C, N of A intersection B intersection C is given as 10. NA, NB, NC, these all are 35. Alright, what is the largest possible number of students in the school? ये पूछा गया हमसे. What is the smallest total number of students in the school also? This is also asked. So considering the situation, think about it. जैसे पहले मैं 2 सेट लेता हूँ. सपोज मैं ना जैसे 2 सेट लेता हूँ. मान लो A एंड B है. अगर मुझे कोई भी फिक्स नंबर जैसे 35 ही ले लेता हूँ, राइट. तो जैसे मुझे A एंड B में मैं इंटरसेक्शन में 35 लिख दूँ और इधर 0 0, तो बताइए कि A एंड B दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? 35. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स is also 35. But keeping the number of elements in A and B to be 35 individually, मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बढ़ा सकता हूँ? देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 34 कर दिया, यहाँ मुझे 1 1 करना होगा, तो अब कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? आर गेटिंग इट? तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमें keeping the total number of elements in each of the sets 35, हम total number of elements देखें तो यहाँ 36 सारा बढ़ रहा है. तो आप कॉमन सेक्शन में जितना कम लोगे उतना total number of elements यहाँ पे बढ़ेगा. जैसे मैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाऊँ, इधर मैंने मान लो 35 ले लिया इस इंडिविजुअल पार्ट में, इधर 0 और इधर 35. तो दोनों सेट में देखा जाए A एंड B में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 35, कॉमन सेक्शन 0 है, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो यहाँ 70 आ रहा है बच्चों इन A यूनियन B. तो कीपिंग दिस इन माइंड हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ मैं वेन डायग्राम ABC 3 का बनाऊंगा. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम क्या करना चाहिए? जो लास्ट केस है वो मैक्स के लिए, ये मैक्स के लिए और ये समझ लो मीन के लिए. ठीक है, इस तरह का सिचुएशन हमें 3 को लेके चलना है. तो हमें ABC तीनों में क्या रखना है? वेन डायग्राम से इजीली ज़्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 10 तो फिक्स है, तीनों में कॉमन जो है, इंडिविजुअल पार्ट्स में लेके चल रहा हूँ. और आई हैव टू मेंटेन 35 in each of the circles, राइट. तो मैं फॉर मैक्सिमम मैं कॉमन पार्ट में ना यहाँ 0 करूँगा. ठीक है, जो कॉमन पार्ट्स में मैक्स जितना 0 बना सकते बना है ना, एम्प्टी.
तो ये तो 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम 25 लेंगे, यहाँ 25, इससे आपका मैक्सिमम जो है एन मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। कॉमन सेंस से हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दैट इज़ 25 इंटू 3 प्लस 10, दैट इज़ 85। इससे ज़्यादा नहीं होगा, बट ये मैक्स है, इतना पॉसिबल है। और ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। फॉर मिनिमम हम क्या करने वाले हैं, देखो मिनिमम के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा, मैक्स करना पड़ेगा इन तीनों सेक्शन में। कॉमन पार्ट ये तो 10 फिक्स है। अब खेल है यहाँ पे, आई मीन कंपेयर इधर क्या लेना है हमें इन सेक्शंस में। तो मैं इंटरसेक्शन में मैक्सिमम लेना चाहता हूँ, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम के लिए, बट हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग दैट द इंडिविजुअल साइज जो है वो सेट्स का पक्का है कि वो 35 होना चाहिए। अब सेट्स का जो साइज़, इसमें ये एलिमेंट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये पार्ट भी आ रहा है। तो अब देखो कि मैं इन चारों का मिला, 10 तो फिक्स है, तो इन चारों मिला के 35 होना चाहिए। और इधर बी में भी ऐसे ही चार आएंगे, और सी में। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको कि क्या मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि हमें इधर 0 0 0 कर लें। अगर देखिए पॉसिबल हो, अगर हम 0 कर लें इधर, लाइक मैं मीन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो चल रहा है, और यहाँ 0 कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा, जैसे इन दोनों मिला के मुझे चाहिए 25, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ 13 हो गया, और यहाँ 13 तो यहाँ 12, लेकिन यहाँ देखो अब 35 हो नहीं रहा, तो आपको मिनिमम एक तो इधर लेना ही पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसमें देखो कि हर सर्कल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेट्स में, वो आपको दिखाई देंगे। 13 प्लस 12 प्लस 10, दैट इज़ 35, 35 एंड 35। एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे। और गेटिंग दिस, मतलब हमें आप इस 2 सेक्शन से पहले मैंने स्टार्ट किया बताना कि इसके थ्रू आप इजीली थर्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट 12 1 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10। तो ये कितना आ रहा है देख सकते हैं हम लोग, ये आ रहा है 36 38 48। इतना तो मिनिमम मेंटेन करना ही है। और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे सामने पिक्चर में। ओके, आप इसमें सिंबॉलिकली कुछ एलिमेंट्स को नेम करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली इन पार्ट ए इज़ एक्स, ओनली इन पार्ट बी इज़ वाई, ओनली इन पार्ट एक्स इज़ जेड, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ अगर कि जैसे मैं सपोज़, आप अगर जनरलाइज करना चाहते हो, इसमें एक्स ले लो, इसमें वाई ले लो, इसमें जेड ले लो, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी ले लो, और ये तो 10 फिक्स है। तो अब देखिए कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बात वही है बच्चों, है ना। आप जैसे ऐसे भी करोगे तो थिंग्स विल कम इन द सेम मैनर, लाइक एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 10 इज़ 35, सो ये 25 हो गया। फिर वाई प्लस सी प्लस ए, ये भी 25 है। एंड जेड प्लस ए प्लस बी, वो जो है जेड प्लस एक्स प्लस ए, जेड प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या आ रहा है, वो आ रहा है 25। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो मान लीजिए कि हमने k बोला, तो k जो है वो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 10। ठीक है, तो इसको हमें जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अच्छा, और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75 आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे k बनाना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ k बनाना चाहता हूँ, तो दिस इज k प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k मतलब हमने x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं ना जैसे कि यहाँ पे यहाँ से लिख सकता हूँ k माइनस 10, आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने k माइनस 10 यानी ये 85 है। तो यहाँ से बच्चों k जो है वो आ रहा है
85 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वही ए प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूंगा तो लेस दैन इक्वल टू 85 ही आ रहा है। ए बी सी 0 0 0 कर दिया और मैंने लास्ट पिक्चर में देखिए सारे एक्सप्लेन किया हुआ फर्स्ट केस। और देखिए यहाँ पे इसी तरह से इफ़ आई कंसिडर इट लाइक दिस कि मैंने x प्लस वाई प्लस जेड 2k कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दिया और फिर 2k नहीं बनेगा ये एक्चुअली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी ना k माइनस 10 है, तो इसको मैं k माइनस 10 लिखूँगा ना, राइट। सो इफ़ आई ऐड x प्लस वाई प्लस जेड बोथ द साइड्स तो ये आ गया 2k माइनस 10, दिस बिकम्स k 2k इज इक्वल टू 95 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 95, सो k जो है मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 47.5 आ रहा है, ठीक है। तो k की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 48, ठीक है, क्योंकि k इंटीजर है और यहाँ जो k मैक्स आ रहा है वो 85 आ रहा है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि हमें किस तरह सिचुएशन मैथमेटिकली कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा हम वेन डायग्राम में चीज़ों को समझें कॉमन सेंस से पिक्चर बना के। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। A2 सेकेंड क्वेश्चन देखें इस पेपर का। लेट P बी द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, P एक प्लेन है जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच दैट इज परपेंडिकुलर टू 2 माइनस 3 4 and that lies in the plane P. Note all the vectors considered in the line segment starting with the origin 0 0 0 in the particular origin lies in the plane P. The origin lies in the plane. ठीक है, ये तो कुछ नोट गिवन है जनरल। सो हमें बेसिकली ढूंढना है द वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइंग इन द प्लेन ऑफ दीज टू एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर 2 माइनस 3 4। एक तो जनरल आइडिया है, मेथड मैं इसको दो अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ। आप देखिए, लाइक लेट द वेक्टर बी आर, लेट द वेक्टर बी आर जो हमें ढूंढना है, तो आर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आर को हम लिख सकते हैं बच्चों, आर इज इक्वल टू सम, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया और इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया और इसको मैं सी वेक्टर बोलूँगा, सी वेक्टर, ठीक है। तो आर इज एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है। तो यहाँ से फिर अच्छा, एंड आर इज परपेंडिकुलर टू सी एंड आर डॉट सी 0। तो यहाँ से ना आप जैसे सीधा सीधा आर डॉट सी कर लेते हैं, सो डॉट विद सी कर लेते हैं, आर डॉट सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी। तो यहाँ से 0 आ गया एंड ए डॉट सी की वैल्यू देखिए, ए एंड सी दैट इज 6 इंटू 2 12 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 9 इंटू 4 36 एंड बी डॉट सी क्या आएगा बच्चों, देखिए 7 इंटू 2 14, 8 माइनस 3 इज माइनस 24 एंड 10। सो हाउ कैन वी एज्यूम आर एज दिस, बिकॉज हमने आर कह रहा है कि इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सो एनी थर्ड वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी एज्यूम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। सो आर को हमने एक्स ए प्लस वाई बी लिया है। ऑलराइट, ये पता है आपको, तो ये कर सकते हैं ना, ए बी के प्लेन में थर्ड वेक्टर इसी फॉर्मेट का होगा, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ये इली दिख जाता है। सो हम थे बी डॉट सी पे, तो बी डॉट सी पे हम देखें तो 10 प्लस 4 10 इंटू 4 40 आ रहा था। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है जो कि कहता है कि 36 18 18 प्लस 30x एंड हेयर इट इज़ 40 प्लस 14 इज 54 माइनस 30y इज इक्वल टू 0, मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज माइनस ऑफ y। सो यहाँ पे फाइनली हमें r मिल जा रहा है y टाइम्स b माइनस a कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, y b माइनस a कर दूँ तो ये आ रहा है 1 7 माइनस 6 8 माइनस 6 इज 2, 7 माइनस 6 1 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया और 10 माइनस 9 1 हो गया। तो ये आपका वेक्टर आ रहा है, बट हमें आर कैप निकालना है। सो आर कैप आप सीधे कह सकते हैं, सो आर इज अलॉन्ग 1 2 1, सो आर कैप इज प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, 1/√6 2 स्क्वायर है ना,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2√6 1/√6, तो ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मेथड 2 में हमें पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं यूज़ करना चाहूँगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए। सो वेक्टर मेथड 2 में देखिए डायरेक्टली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्टली इसी सिचुएशन के लिए एकदम सुटेबल है। अगर हमें वी कैन रिकॉल कि आर कंसिडर ए क्रॉस बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए क्रॉस बी ले लेते हैं। तो दिस इज अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन। इसका फॉर्मूला पता है ना हमें, इसका फॉर्मूला है सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी। दिस इज अ वेक्टर फॉलोइंग द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड इज परपेंडिकुलर टू सी, परपेंडिकुलर टू, सो ए बी के प्लेन में आ रहा है और सी के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस है ना, तो आर मस्ट बी अलोंग, आर मस्ट बी अलोंग डायरेक्टली कह सकते हैं। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला है, इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये हालांकि वही कुछ इस तरह का ही आ रहा था, आर इज़ अलोंग, आर इज़ अलोंग वॉट दिस वेक्टर एंड सी डॉट बी देख लें क्या है। सी डॉट बी हमें वही 30 ही आ रहा है एंड सी डॉट ए भी 30 आ रहा है इन द, हम देख सकते हैं ये सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले से आ जा रहा है। हम लीनियर कॉम्बिनेशन के बिना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो 30A माइनस 30B, सो डेफिनेटली ये फिर 30 आ जा रहा है माइनस ए माइनस बी, तभी हमने बी माइनस ए किया था, एक ही बात, ए माइनस बी 1 2 1, तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -1। सो आर कैप जो हो जाएगा वो प्लस माइनस फिर से 30 का कोई मतलब नहीं है, और 1 हम -1 कॉमन ले सकते हैं, 1/√6 2/√6 1/√6 डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। तो ये सेकेंड मेथड की तरह देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो बोथ द लीनियर कॉम्बिनेशन यूज से या फिर डायरेक्टली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग टू डेफिनेट इंटीग्रल्स, इट मे बी यूजफुल टू फर्स्ट स्केच द ग्राफ। ओके, ये कह रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू बताओ, अगर आप ग्राफ बना दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ln x का ग्राफ हमें पता है, बेसिक ग्राफ like this and however the limits are given as 1 to e square। तो जैसे यहाँ पे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एक वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे जो I1 है इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं I2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो I1 का जो इंटीग्रेशन है वो है, सो ln mod x का ग्राफ क्लियर है ना आपको, सिमेट्रिकल y एक्सिस इवन फंक्शन। सो ln x का बनाया राइट में और उसका फिर लेफ्ट में उसका इमेज ले लिया। सो दिस इज 1 to e square and as x is positive 0 1 to e square ln x is there and using by parts we can easily integrate this and we know the integration directly also। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली हम x ln x माइनस x कर सकते हैं, 1 to e square जैसे आप लिमिट फिट करोगे तो e square इंटू ln e square is 2 माइनस e square, ठीक है, x ln x माइनस x इज द इंटीग्रेशन ऑफ ln x। माइनस 1 जब रखते हैं तो 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पे 0, ये -1 आ गया। सो फाइनली ये आ रहा है 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। और कमिंग टू I2 को अगर मैं ग्राफ स्केच करूं तो ओके, दिस अगेन इवन फंक्शन ln mod x by mod x। ऑलराइट, सो ln x by x का ग्राफ कैसा है पहले आप वो देखो। 0 पे अगर लिमिट निकालूं, 0 प्लस पे तो 1 माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी बाई 0 प्लस दैट इज माइनस इन्फिनिटी, अगेन लिमिट निकालना पड़ेगा। और 1 पे वैल्यू 0 है तो इस तरह से ये 0 से 1 में नेगेटिव है, और उसके बाद इन्फिनिटी पे, हाँ 1 के बाद इट इज़ पॉजिटिव एंड इन्फिनिटी पे इट इज़ अगेन 0 टेंडिंग टुवर्ड 0। कुछ इस तरह का ग्राफ है और ये जो पॉइंट आएगा ये माइट बी शायद ये ई पे आता, एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई पे आता है, ठीक है। सो इसमें फिर अगर हम बात करें इवन फंक्शन की तरह तो इट बी लाइक दिस, ये कुछ रफली इस तरह का ग्राफ है एंड हमें बताना है -1 to 1 में ये पार्ट आ रहा है,
अब देखते हैं ये कन्वर्जेंट आ डाइवर्जेंट आता है. सो इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं. I2 एज इवन फंक्शन, तो इमीडिएटली कैन राइट 2 टाइम्स -1 2 टाइम्स 0 to 1 कर लेते हैं. तो या ब्रेक कर सकते हो -1 to 0 0 to 1. तो ये आ रहा है राइट हैंड साइड में ln x by x dx. एंड ln x by x इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी. ln x को हम t ले लेंगे तो t dt, तो t स्क्वायर बाई 2 यानी ln x होल स्क्वायर बाई 2. तो ये 2 मैं कट कर सकता हूँ और ये 1 to 0 to 1, 0 प्लस है बेसिकली. तो यहाँ पे ln 1 तो 0 हो जाएगा एंड ऑलराइट ln 1 इज 0 एंड ln 0 प्लस पे जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आएगी. ठीक है. सो द वैल्यू फाइनली इज माइनस इन्फिनिटी. डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट. सो इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी. ये डाइवर्जेंट है. ये दिस I2 डज नॉट एग्जिस्ट, बट बेटर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी वी शुड से. सो ये इसका आंसर है. ऑलराइट. नाउ next question number 4. A fair die is thrown 100 times in succession. Find probabilities of the following events. एक fair dice को हमने 100 times throw किया. Find probabilities of following events. First, so any 4 is okay. First में देखते हैं. 4 is the outcome of any. चलो मैं one by one. ठीक है. 4 is the outcome of one or more of the first 3 throws. 4 is the outcome of one or more, means 4 should come at least once in first 3 throws only. बाकी थ्रो का हमें नहीं चेक करना. ठीक है. पहली 3 बार एज ए थ्रोज आर इंडिपेंडेंट, तो हमें रिमेनिंग से मतलब नहीं है. फर्स्ट 3 थ्रोज को ही देखेंगे और डेफिनेटली इनिशियल थ्रोज में बाद के थ्रोज का मतलब नहीं है. यहाँ पे 4 इज द आउटकम ऑफ वन ऑफ द मोर. इसका मतलब इसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन देखिए केसेस के थ्रू. अगर मैं बोलूं कि 4 कभी भी नहीं आया, 4 नेवर कम्स, लाइक PA को मैं लिख सकता हूं थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री केसेस. मतलब इसको मैं 1 माइनस PA बाहर लिख सकता हूँ. देखिए यहाँ पे सीधा है कि 4 एक बार भी नहीं आया. A is the event that 4 comes at least once. तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और PA बार मीन्स 4 नेवर कम्स. एटलीस्ट वंस का जो कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज नेवर. ठीक है. तो 4 नेवर कम्स मतलब वी हैव ओनली 5 ऑप्शंस. 5/6, 5/6, 5/6 एवरी टाइम. सो ये आ जाएगा आंसर. और यहाँ पे सीधा सीधा ये है 1 माइनस 125/216 एंड दैट इज 216, 125, 191/216. ऑलराइट. Coming to the second, exactly 2 of the last 4 throws give an outcome divisible by 3. Outcome divisible by 3 का मतलब है either that is outcome 3 और जिन्होंने complete mention किया है. Exactly 2 of the last 4 throws. Exactly 2 of the last 4 throws give an outcome divisible by 3. तो सबसे पहले probability of an outcome getting 3 और 6 क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा 2/6. That is 1/3 at any of the stage, at any throw, at any particular throw, at any particular throw. Now they are saying that कि in the last 4 throws, so we only have to consider the last 4 throws. The throws are independent. So यहाँ पे हम ये देखेंगे कि all right,
कि हमें सपोज एंड इसको मैं इवेंट कुछ बी नाम दे देता हूँ, तो पी बी आपका है 1/3, तो पी बी बार क्या हो जाएगा 2/3. सो वी नीड व्हाट इन द लास्ट 4 थ्रोज, इन द लास्ट 4 थ्रोज प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 बी चाहिए ना, 2 बीज एंड 2 नॉन बीज ऐसे करके. तो प्रोबेबिलिटी जो होगा बच्चों यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली से कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी कि हमें 4 में से 2 प्लेसेस चूज करने हैं. 4c2 का यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रोल है कि यहाँ पे विच 2 थ्रोज आउट ऑफ 4 विल शो यू अ नंबर डिविजिबल बाई 3, विच 2 नॉट डिविजिबल बाई 3. तो पहले सेलेक्ट 2, इट मे बी फर्स्ट सेकेंड, मे बी फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ और थर्ड फोर्थ. टोटल 6 केसेस आते हैं. 4c2 इज दैट. एंड सो दिस इज लाइक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से. और यहाँ पे हम सक्सेस इसको बोलेंगे 1/3 आने को, तो 1/3 का पावर 2 आ रहा है और यहाँ पे फेल्योर है 2/3 का पावर 2 आ रहा है. इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए. और देखिए 6 × 4 24 डिवाइडेड बाई दिस इज 81 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे कट कर सकते हैं. 8/27 मस्ट बी द फाइनल आंसर. सो इज अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 पे आए. राइट योर आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो एज सीरीज ऑफ 3 लेटर्स y फॉर येस और n फॉर नो. लीव स्पेस बिटवीन द ग्रुप ऑफ द 3 लेटर्स आंसरिंग one the answers to 2 and the answer consider graph of the graph okay of the function. graph हम इसका प्लॉट कर सकते हैं और हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. इनफैक्ट फॉर एवरी फंक्शन देयर आर 3 फंक्शन एंड 3 तीनों के लिए 1 2 3 है एक्चुअली. yes or no, leave space between 1 the answer 2 let us answer 1 the answer is 2. सो एक्चुअली ये तीनों में देखो आप, इनमें F का डिस्कशन है फर्स्ट में, सेकेंड में G का और थर्ड में H का. सो एंड 3 क्वेश्चन इन ईच पार्ट इज आस्क्ड सो 3 × 3 9 क्वेश्चन आर देयर. सो वील हैव टू इंडिविजुअली जज. सो फर्स्ट प्लॉट आई मीन प्लॉट कर सकते हैं. दीज आर नॉट टफ टू प्लॉट, दीज आर रैशनल फंक्शंस. रैशनल फंक्शंस हैं ये. तो रैशनल फंक्शंस के ग्राफ के लिए थोड़ा हम बेसिक आइडिया इज़ कि जो एसिम्पटोट्स एंड रूट्स का जो है, रूट्स एंड एसिम्पटोट्स, इसका थोड़ा केयर करेंगे. और साइन स्कीम भी इंपॉर्टेंट रहता है. साइन स्कीम देखिए सर 1 by 1 आई विल टेक दीज फंक्शंस. सो नंबर 1 इसमें एफ एक्स को मैं इनफैक्ट कट करके लिख सकता हूँ x² अपॉन x-1. ऑलराइट, ठीक है. बट x नॉट इक्वल टू 0 ये साथ में लिखना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी 0 बिकॉज जो अभी प्रेजेंटली डिनोमिनेटर उसमें ये तो इंश्योर हो रहा है कि x शुड नॉट बी 1 बट x 0 इंश्योर नहीं होता. ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से x शुड नॉट बी 0. सो कैन आई राइट दिस एज एफ एक्स एज अगेन एक सेकेंड जस्ट 1 sec. ओके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करें अगर तो मैं लिमिट वगैरह भी इजीली चेक कर पाऊंगा. x² को लिख दो x² -1 + 1 एंड डिवाइड बाय x -1, तो यूल राइट x + 1 प्लस x² इसको लिखा मैंने बेसिकली x² -1 + 1 डिवाइड बाय x -1. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज x + 1 + 1 बाय x -1. तो यहाँ से ना आप इजीली ग्राफ देख सकते हैं. द एसिम्पटोट एक आ रहा है x = 1 पे एंड ग्राफ अगर बनाता हूं मैं x = 1 पे एक डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं. 1 के राइट में प्लस इन्फिनिटी दिख रहा होगा आपको यहाँ से. इज़ वेरी क्लियर. प्लस इन्फिनिटी से चलिए और इन्फिनिटी पे 0 नहीं, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी वाला पार्ट है, ये 0 वाला पार्ट है. 2 पार्ट्स हैं तो इन्फिनिटी + 0 इन्फिनिटी. सो ग्राफ वुड बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है बच्चों. Now coming to 1 left, 1 के लेफ्ट में this is finite, this is minus infinity. So minus infinity से ऐसे निकलता हुआ आएगा ये
एंड ज़ीरो पे वैल्यू ओरिजिनली देखा जाए तो ये तो जैसे यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो पे यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, राइट, बट ज़ीरो पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हम वी शुड ओपन इट, ऐसे ज़ीरो ओपन ब्लैंक करेंगे लाइक दिस एंड एज ओके। एंड अगेन साइन स्कीम अगर देखो, साइन स्कीम देखो तो 0 1 प्लस माइनस माइनस आएगा, बिकॉज ज़ीरो पे पावर इज इवन, सो अगेन माइनस ही लेना नीचे की तरफ। सो ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये ओरिजिन है, ये नीचे की तरफ ग्राफ आएगा ऐसे एंड एज एक सेकेंड जस्ट वन सेक। माइनस इन्फिनिटी पे क्या सीन है, माइनस इन्फिनिटी पे देखो ये तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ये जीरो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे ये ऐसे करके चला जा रहा है ग्राफ। सो ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस एंड इसमें हम ये कह सकते हैं फाइनली आंसर अगर करें इस फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए एफ इज डज एफ हैज़ have a horizontal asymptote? No, it doesn't have horizontal asymptote. No. Vertical, yes, x equal to 1. So it is yes. And removable discontinuity, yes. Removable discontinuity at x equal to 0. And that is removable. At x equal to 0, it has removable discontinuity. यहाँ दिख रहा है. Clear है? So ये graph is coming to the gx part, x square minus x by x cube. So I'm writing in the next page. X square minus x by x, which is basically the inverse of it, fx. X square minus x by x cube. X square minus x by x cube is the gx, the second part. You try to draw the graph of it. This is x minus 1 by x square. X not equal to 0. However, x not equal to 0 लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, इसको मैं सीधा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी डिनोमिनेटर कह रहा है कि x0, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी इससे पता लग रहा है। अगर आप इसको भी उठाएं सीधा तो पता है कि ये भी x0 पे डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पे वी कैन राइट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे साइन स्कीम एक बार चेक करते हैं। सी द साइन स्कीम इज लाइक 0 1 प्लस माइनस माइनस, साइन स्कीम सेम है। सो ग्राफ कैसा है, ग्राफ पे आते हैं अभी। ग्राफ आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लें इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो पे यूल हैव एसिम्टोट, ज़ीरो पे एसिम्टोट आ रहा है एंड ज़ीरो के राइट में माइनस इन्फिनिटी। सो वन सेक, ओके। सो माइनस इन्फिनिटी से आएगा ये एंड एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1 के बाद नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव ही आ रहा है। सो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 पे इज़ अ रूट, 1 पे एक रूट है, ऐसे जाएगा ये, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज हायर, सो इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ ऐसे टर्न होगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट कुछ इसको ऐसे बनाएं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिख रहा होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड इन द लेफ्ट व्हेन x is negative, it is again negative sin scheme says. So sin scheme बनाना is a very useful thing है। So यहाँ पे again माइनस इन्फिनिटी से आता हुआ एंड x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो आ रहा है डिनोमिनेटर इज हायर, सो 1 बाई ओके लीनियर बाई क्वाड्रेटिक माइनस इन्फिनिटी ही आएगा एंड विल बी लाइक कंप्लीटली लाइक दिस, ऐसे आएगा। सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है तो इनफाइनाइट आएगा, माइनस इन्फिनिटी निगेटिव। तो ये ग्राफ है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी? देयर इज नो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। सो लास्ट वाला तो इसमें सीधा n हो गया,
और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है क्या? यस. वर्टिकल एसिम्पटोट भी दिख रहा है, दिस x इक्वल टू 0, ये वर्टिकल एसिम्पटोट. सो y n इज द आंसर. व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? और थर्ड पार्ट में फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स. सो इट इज एच एक्स, आई थिंक एच एक्स था, सॉरी, या इट वॉज, ओहो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? एच एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स. एच एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स. ऑलराइट, इसको भी मैं एक्स कैंसिल कर सकता हूँ और ये तो आई थिंक ईजियर सा फंक्शन दिख रहा है. और इनफैक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नो डिसकंटिन्यूटी इज देयर अपार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0. सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. ओके, और ये 1 y इक्वल टू 1 व्हेन x टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी, y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है. ये 1 से हमेशा छोटा है, इवन फंक्शन है. 0 पे वैल्यू इसकी आप देख सकते हैं, 0 पे वैल्यू जो कि हमें लेनी नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 है वैसे, तो यहाँ पे -1 आएगा. यहाँ -1 इसको ओपन करते हुए वी कैन प्लॉट इट लाइक दिस. कॉमन शेप है ये. ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए भी कर सकते हैं आप, पॉजिटिव फिर -2 लगा के फिर +1 ऐड करके. सो दिस इज द ग्राफ, and from the graph it is very clear that do we have any horizontal asymptote? Yes, we have horizontal asymptote. तो इसमें एक तो ये आ गया. Do we have any vertical asymptote? No, there is no vertical asymptote. Vertical asymptote नहीं दिख रहा है ग्राफ पे. Any line which touches the graph at infinity, vertical line नहीं है. और any removable discontinuity? Yes, at x equal to 0 it has a removable discontinuity, so y and y removable discontinuity third part. ठीक है बच्चों. So this was question number 5, 1 by 1. All the 3 parts were drawn. So F, G, H. Question number 6. Recall the function arc of tan x, also denoted as tan inverse x. Okay. Complete the sentence. Arc tan of 20202019 plus arc of tan of 20202021. बीच में एक blank है. Twice of arc of tan of 20202020. ठीक है. Because in the relevant region the graph of y is equal to tan inverse x, arc of tan x. अब you have to fill the blank with one of the following. देखो इसमें ना पहले वाले में या तो is less than, is equal to, is greater than, मतलब हमें कंपेयर करना है बेसिकली. यहाँ पे हमें करना है compare the values, compare the values and fill the second blank the single phrases. Single correct reason consisting of one of the following phrases is bounded, is continuous, has positive first derivative, has negative first derivative, has positive second derivative, has negative second derivative, has an inflection point. So many options are there, so you have to fill one of these. The actual reason, the cause, the reason यहाँ पे आपको लिखना है. तो y is equal to tan inverse x. अगर देखा जाए, अगर मैं इसको सपोज इनमें से किसी, जैसे यहाँ पे ना -1 2019 दिख रहा है ना, ठीक है, 20202019 2020, इसमें 2 ऐड किया है और इसमें 1 ऐड किया है. एक तरह से ये मीन कह सकते हैं इसको. अगर मैं n नाम देता हूँ, दिस इज n+1, दिस इज n-1 कह सकते हैं. सो वी हैव टू कंपेयर tan इनवर्स ऑफ n-1 प्लस tan इनवर्स ऑफ n+1. हमें चेक करना है कि ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n, जहाँ पे n आपका है इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी, 20202020 ऑब्वियसली इज़ अ बिग क्वांटिटी. ठीक है. सो देखते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी है पॉजिटिव साइड में. tan इनवर्स x के बाद ग्राफ पे चेक करते हैं, राइट, एंड विल सी कि क्या सिचुएशन है. tan इनवर्स x का ग्राफ पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में भी देख सकते हो. कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका. π/2 इसका मैक्सिमम अप्रोच करेगा, आई मीन इसका जो कह सकते हैं सुप्रीमम. तो यहाँ पे सो लेट n बी समवेयर. So I take n-1 here. यहाँ पे if I connect
इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज n-1 लिया है, यहाँ n+1 लिया है और बीच में एग्जैक्टली n आएगा, सो हेयर। ओके, नाउ सी, इसमें ये कर सकते हैं कि दिस ग्राफ इज y इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस पॉइंट इज n-1 tan inverse of f of n-1. This is n+1 f of n+1. Yeah, the graph is concave in the right hand side. यहाँ पे concave down है, concavity के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, concave down. So in the for x greater than 0. So यहाँ पे obviously the chord will fall below the chord joining point A and B. Suppose this point is A, this point is B, will fall below the curve. So इस point को अगर मैं mid point बोलूँ M, तो M का coordinates क्या होगा? M का coordinates हो जाएगा n average of the xa plus xb by 2 comma fa plus fb by 2, and that is nothing but ये हो जाएगा n comma f n-1 plus f n+1 by 2, and as the point M is below the curve, complete curve is below the ना, तो यहाँ पे जैसे एक point curve का इसको मैं f नाम देता हूँ. So as so what is f? F is below है ना, exactly ऊपर. f का x coordinate तो n ही है, y coordinate is f of n, right? So f is on the curve. So as m is below, as m is below f, that the reason is कि curve is concave down, concave downward. Are you getting it? Sorry, curve is concave downward. So यहाँ से we can say कि tan f of, see that y coordinate of m is less than y coordinate of f. Now what is y coordinate of m? F of n-1 plus f of n+1 divided by 2 will be less than. So this is according to Jensen's को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. जेंसेंस इनइक्वालिटी कुछ इस तरह का ही है, मतलब एग्जैक्टली कॉन्केविटी पे एकदम सेम चीज़ है. ये जेंसेंस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है. डायरेक्टली हम कह सकते हैं f of n that is n-1 plus n+1 by 2, दोनों का एवरेज है बेसिकली बच्चों, that is fn, that is fn बेसिकली. तो यहाँ से सीधा क्लियर है कि f n-1 plus f of n+1 is less than 2fn. ये हमें प्रूफ, ये हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मस्ट बी, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉर द फर्स्ट गैप इज, फर्स्ट ब्लैंक is less than, all right, is less than. And for the second, the actual reason for this, see, explore the different area. Is bounded? No, it is not bounded. It's continuous. It's continuous, but is not the reason. Has positive first derivative. Okay, I mean for x greater than 0 पे तो है ही, but शायद ये overall भी पूछ रहे हैं. Has negative first derivative. Has, तो यहाँ पे ना has negative second derivative because concave down है. Has negative second derivative because it is concave down. So this is the answer. Alright बच्चों, so this was a question. Question number, इसको LMVT से भी ट्राई कर सकते हैं आप, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम से. Question number 7. The polynomial px is equal to 10 x raised power 400 plus a x raised power 399 plus b x raised power 398 plus cx plus 15 a and b are real constants is divisible by x square minus 1. It means what? X square minus 1 is x minus plus 1 into x minus 1. It means इसके दो फैक्टर हैं, यानी कि इसके फैक्टर थ्योरम कहता है कि इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू p-1 0 होगा एंड p1 भी 0 होगा. इमीडिएटली हम इसमें, जैसे फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी कि इफ़ यू
can find the values of a and b. Write your answer equal to b equal to, if it is not possible, decide state so. So let's check, can we find the values of a and b, particular value आती है नहीं. Second part में, if you can find the sum of reciprocals of all 400 complex roots of px, जितने भी इसके रियल या नॉन रियल रूट्स हैं, write the answer as sum is equal to this. If it is not possible to decide, state so. Okay, so one by one, coming to the first part. See, p minus 1 0 है, p 1 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, p minus 1 डालिए आप, तो 10 minus a plus b minus 3 plus 15 is equal to 0. सो ये आ गया. और यहाँ से फिर दूसरा वाला आ जा रहा है, 10 1 रखते हैं, p1 10 प्लस a प्लस b प्लस 3 प्लस 15 इक्वल टू 0. ऑलराइट बच्चों, सो ये फैक्टर्स थे इसके और वहाँ पे रूट्स आ जाएंगे. तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं कि माइनस या a प्लस b निकाल लो. 10 a माइनस b क्या आ रहा है, हमने राइट में ले लिया. And 15 plus 10 is 25 minus 3 is 22. Alright, and second से a plus b आ जा रहा है, which is 25 plus 20 minus 28. Alright, so if you add the two, a minus b, alright, so if you add the two, you'll get a as minus 6 by 2, that is minus 3, and put a की value in the second or first, anyone, so is minus 3, so b is minus 25. all right, 3 minus 28 is minus 25. so ये इसके values हैं, ये इसका आंसर भी है फर्स्ट पार्ट का. so this is answer to the part 1. now coming to part 2. part 2 पे आ जाते हैं. so look, simple question ये लग रहा है. if you can find the reciprocals of roots, suppose इसके roots हैं 400 roots are there. suppose the roots are, let roots of px be xi, i जो है वो आपका 1 to 400, या ठीक है, ठीक है, 1 to 400 ले लेते हैं. एंड सो हम कह सकते हैं कि नाउ पी एक्स इक्वल टू 0 में क्या करो, इन पी एक्स रिप्लेस एक्स बाई 1 बाई वाई. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10 बाई एक्स की जगह 1 बाई वाई ले लो, वाई रेज पावर 400 प्लस ए बाई वाई रेज पावर 399. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड बी बाई एक्स वाई का पावर 398, जिसमें रूट रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स ऑफ, क्योंकि नो रूट इज 0 तो ये चल जाएगा, वाई प्लस 15 ये 0 कर देते हैं. और यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 वाई रेज पावर 400 प्लस 3 वाई रेज पावर 399, ऑलराइट, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 10 इक्वल टू 0. नाउ एज एक्स इज 1 बाई वाई, इस वाई में जो ये 400 डिग्री का जो एक पॉलिनोमियल है, सो रूट्स आर इनफैक्ट रूट्स क्या होंगे इसके, वी हैव रिप्लेस एक्स बाई 1 बाई वाई. अब जो वाई में क्वाड्रेटिक 4 पॉलिनोमियल बना है, उसके रूट्स आर 1 बाई, क्योंकि y इज़ 1 बाई एक्स ना, y इज़ 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स आई इसके रूट्स हैं, मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आई. तो यहाँ पे बच्चों सिग्मा हमसे पूछा गया था, सिग्मा एक्स आई सॉरी सिग्मा 1 बाई एक्स आई पूछा गया था, i इक्वल टू 1 to 400 1 बाई एक्स आई. इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई आई इक्वल टू 1 to 400, एंड फर्दर सिग्मा वाई आई इज डेफिनेटली द सम ऑफ रूट्स ऑफ अबव पॉलिनोमियल. दैट इज व्हाट, -3 माइनस बी बाई ए ना, -3 डिवाइडेड बाई 15
The answer is minus 1 by 5. This is the answer to the second part of the question, part 2. Alright. So ये दो पार्ट थे इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड. Alright, A and B and the value of second part. So coming to question number 8, 7, 8. For the positive integer n, let dn the number of positive integer divisors of n. For example, dn represent कर रहा है the number of positive divisors of n. This is okay. So if we know it. It's a very common theory. I hope you know this. If suppose some number n is made of primes, like any number, the fundamental theorem of arithmetic says that every number, natural number, can be expressed uniquely as a product of primes. Suppose p1 p2 primes है, p1 का पावर suppose alpha 1 है, p2 का पावर alpha 2 है, p3 का पावर alpha 3 and so on, ऐसा करके है. तो यहाँ पे ना dn जो होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस, ये होता है सीधा कि आपने ऑल पॉसिबल सिलेक्शन करने हैं प्राइम्स के. दीज आर प्राइम्स, p1 pi आर प्राइम्स. ऑलराइट. सो 1 प्लस अल्फा 1, p1 एक भी नहीं लिया या एक लिया, दो लिया, इस तरह से. तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं p1 से. सो एवरी फैक्टर इज मेड ऑफ दीज प्राइम्स p1 p2. सो अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन. इस तरह का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, dn का जनरल फॉर्मूला. अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल d6, जैसे d6 आप चेक करो तो 6 में 2 इंटू 3 है, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 2, दैट 4 हो जाएगा. d6 इज 4. आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो. फाइंड द नंबर ऑफ n लेस देन इक्वल टू 60. लेस देन इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, dn इज इक्वल टू 6. सो dn 6 है, dn इज 6. इट मीन्स वॉट. नाउ 6 को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, 1 प्लस, या तो 6 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 5 डायरेक्टली, और 6 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 इंटू, मतलब 3 इंटू 2 कर लें, 1 प्लस 1. दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं नहीं. तो यहाँ पे और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 6 को दो तरीके से लिख दिया, तो 3 इंटू 2 लिख दो या सीधा 6 लिखो, है ना. तो सिंगल ब्रैकेट या इस तरह से, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है. तो यहाँ पे सो n शुड बी ऑफ द फॉर्म, n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म सम p1 p रेज टू द पावर 5 डायरेक्टली, और इट इज ऑफ द फॉर्म p1 रेज टू द पावर 2 इंटू p2. ऑलराइट. सो यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि अच्छा, तो p अब क्या लो, मिनिमम से स्टार्ट करता हूँ. सो n कैन बी 2 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5, इस तरह का. लेकिन 3 रेज पावर 5 इज मोर देन 60. n जो ध्यान रखना है कि लेस देन इक्वल टू 60 है. सो इस फॉर्म का, द फर्स्ट फॉर्म का, देयर इज ओनली वन नंबर. और सपोज मैं आई एम टेकिंग मिनिमम से स्टार्ट करें, 2 स्क्वायर लेते हैं, 2 स्क्वायर इज 4. तो या p2 को मैं 2 लूँ तो 3, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 ले लिया, 2 स्क्वायर इंटू 5. आई एम टेकिंग वेरियस प्राइम्स. p1 को आई हैव फिक्स एज 2, 2 स्क्वायर इंटू 7, सो 7 इंटू 4 28 इज लेस दैन 60. 2 square into 11 into 4 44, and 13 into 4 is also 52 is less than 60. But if you take again another next prime is 17 into 4, that is 68, that is more than. So these are the possible cases when n, or when p1 is 2 and p2 को हमने various primes serial में लिए हैं, so that कि 60 से ज़्यादा ना हो. और जैसे मैं p1 को आई एम नेक्स्ट टेकिंग 3 स्क्वायर, एंड p2 को फिर 2 ले लो, 3 स्क्वायर इंटू 5 ले लो. नो, दिस इज ओके, दिस इज 9 इंटू 5 45. बट इफ यू टेक 3 स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 9 इंटू 7 63, एक्सीड्स 60. सो वो नहीं ले सकते. और इसके बाद अगर आप 5 स्क्वायर लेते हो इंटू 2, दैट इज अगेन 5 स्क्वायर इज 25
हाँ, तो यहाँ पे एक 5 स्क्वायर इंटू 2 भी आ रहा है एंड 5 स्क्वायर इंटू 3 नहीं आएगा. देन 7 स्क्वायर इंटू 2 विल ऑल्सो नॉट वर्क. 7 स्क्वायर इंटू 2 विल नॉट वर्क. ठीक है, 7 स्क्वायर इंटू 2 98 इज मोर देन 60. सो ये सारे केसेस आ गए, हमने सारे सीरियल में काउंट कर लिए. सो यहाँ पे टोटल केसेस कितने हैं? यहाँ पे टोटल केसेस आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 3 8 8 केसेस, 8 वैल्यूज़, और यहाँ पे 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू. तो टोटल देखा जाए, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n possible is equal to 1 plus 8, that is 9. So question the find the number of n such that dn is. So this is the final answer to this question. Alright students, number 9, question number 9 पे आते हैं. Notice that the quadratic polynomial px is equal to 1 plus x plus 1 half of x into x minus 1. ओके, px अगर ये है जो कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, इट्स लाइक कि एक्सपेंशन टाइप लग रहा है ना, 1 plus x by 1 factorial x into x minus 1 by 2 factorial. Satisfies pj is equal to 2 raised power j for j equal to 0 1 2. जैसे आप j को 0 लो तो p01 आ रहा है क्या? इससे देखिए p01 आ रहा है. p1 क्या 2 आ रहा है? p1 2 आ रहा है, 1 डालिए, 2 आ रहा है, 1 2 पे 4 आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप. ठीक है, polynomial qx, now they are saying about some polynomial qx of degree 7 which satisfies this. okay, for j equal to 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 8 रूट्स है. यहाँ पे 3 रूट थे क्वाड्रेटिक के लिए, यहाँ पे 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट्स हैं. ऑलराइट, तो 2 raised power j. ओके, इस तरह का जो फॉर्मेट है, जैसे आप इसको भी रीड कर सकते हो. अगर मैं x की जगह जैसे इंटीजर ही ले रहे हैं ना, तो 1 प्लस n c2 टाइप चल रहा है, नहीं. जैसे 2 raised power j को आप रिकॉल करो, लिख सकते हो जे सी नॉट प्लस जे सी 1 प्लस जे सी 2 टिल जे सी जे 2 raised power j होता है ये. सिग्मा एन सी आर फ्रॉम 0 to n इज 2 raised power n फॉर ऑल j. ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये ट्रू है. तो यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि इसमें ये हमेशा ट्रू है. तो आई कैन थिंक अबाउट सम पॉलिनोमियल QX जिसके मतलब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करके ना, लाइक लेट सम पॉलिनोमियल QX की जगह मैं Q1X लेता हूँ. Q1X एज QX माइनस, तो दैट कि मैं इसको रूट कह पाऊँ. देखो यहाँ पे गिवन क्या है कि Q नॉट इज़ 1, Q1 इज़ 2, Q2 इज़ 4, Q3 इज़ 8. तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 raised power j को ही कुछ इस तरह से इसको मैं चलो x के टर्म में, क्योंकि x इज कॉन्टीन्यूस, तो मैं यहाँ ये तो नहीं पाऊँ, बट इसको मैं 1 प्लस जे इंटू जे माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग QX माइनस, आप समझ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, गिवन है कि QJ माइनस 2 raised power j 0 आ रहा है फॉर ऑल j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट्स इसके हैं. बट मैं अगर QX माइनस 2 raised power x बनाऊँ तो यहाँ पे ना फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. तो इसमें ना कंसीडरिंग Q1X एक बना रहा हूँ जो QX है माइनस 2 raised power j की जगह मैं क्या करूँगा, क्योंकि एवरी j के लिए ये ट्रू है ये रिजल्ट. सो मैं 2 raised power j की जगह इस रिजल्ट को जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में, राइट, पॉलिनोमियल बनाना है मैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये कुछ इस तरह से यहाँ एक हम इसमें आई मीन थोड़ा सा स्पेस का कम पड़ गया. सो वी कैन राइट x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टिल
x माइनस 6 करेंगे अपॉन, क्योंकि ये 2 था ऊपर तो नीचे 3 फैक्टोरियल था, यहाँ 6 है तो 7 फैक्टोरियल, इसमें टोटल अब देखा जाए तो ये 7 डिग्री का है। ये इसको माइनस करके इसको मैंने 0 अगर किया, सब ये मतलब qx लिया, सो व्हाट डू यू थिंक इसकी वैल्यू, क्योंकि x इंटीजर पे व्हाट इज देन डेफिनेटली वी कैन से ऑब्जर्विंग ऑल दिस, देन डेफिनेटली q1 j की बात करें, q1j क्या आ रहा है, qj माइनस, और व्हेन वी पुट x एज j, दिस इज नथिंग बट 2 raised power j, इज 0 आ रहा है, सॉरी 2 raised power j। एंड तो ये कैच है यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा है 2 raised power j से आप कैच कर सकते हो, एक पैटर्न समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना ये 0 आ रहा है फॉर ऑल j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट्स आ गए, आप समझ रहे हो, 8 रूट्स, जबकि हमने गिवन था दिस वाज डिग्री 7, इसका डिग्री वाज 7 और इसकी डिग्री भी बच्चों क्या है 7 है। तो दो 7 डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम डिग्री जो क्या आने वाला है, इसकी मैक्स डिग्री क्या आने वाली है, डिग्री लेस देन इक्वल टू 7, जबकि रूट्स कितने आ रहे हैं 8, समझ में आ रहा है, डिग्री है लेस देन इक्वल टू 7, रूट्स 8 है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दिस q1 x जो है ये 0 है फॉर ऑल x, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी। सो फाइनली q1 x 0 है, मतलब qx आपका ये जो राइट में लिखा है ये वाला चीज़ है। तो अगर मैं जैसे या यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि qx जो है वो हो जाएगा 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 टिल x माइनस 6 बाई 7 फैक्टोरियल। ये qx है हमारा। क्वेश्चन आगे बढ़ें। सो वी हैव टू ऑब्टेन, सो वी हैव टू फाइंड फाइनली द वैल्यू ऑफ q10। सो कमिंग टू q10 अगर हम निकालें तो जैसे ही आप इसको 10 डालते हो ना तो ये एक तरह से 1 प्लस 10 आ रहा है, 10c1 आ रहा है, 10c1, ये 10c2 लिख सकते हैं आप, इसको 10c3 लिख सकते हैं, ठीक है, x को 10 डालो तो वो 10c3 का फॉर्मूला, ये फाइनली 10c7 बन गया। तो हम क्या करते हैं इसको फाइनली हम कह सकते हैं, और 1 को 10c0 लिख दो, 2 raised power 10 है माइनस 10c8, वी हैव टू फिल द रिमेनिंग टर्म्स जो इसमें कम है ये लिख दिया। 2 raised power 10 is 1024 and this is 10c8 10c2 that is 45 and 10c9 is 10 is 1, so finally it is 1024 minus 56 and the value finally is 24 32 68 768 I think this is the value। तो 968 ना, सॉरी 968 इज अ फाइनल वैल्यू टू द क्वेश्चन। सो इसका यही आंसर है। ऑलराइट, सो इसमें हमें ये आ गया इस तरह से। इसमें कैच वाज कि हम 2 raised power j को इस तरह से ट्रीट करें। सो वाज वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अगेन अनदर गुड क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। नोट दैट इन्होंने एक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ इन्होंने दिया है कि 25 इंटू 16 माइनस 19 इंटू 21 इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, यूजिंग दिस और अदरवाइज फाइन, विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज दिस। फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी ऑल लेस देन इक्वल टू 475 एंड 475 इज अगेन रिटन इन टर्म्स ऑफ 25 एंड 19। एक 25 इंटू 19 475, उससे छोटा नंबर हमें ढूंढना है ए बी सी, सच दैट ए इज 1 mod 19। मॉड का नोटेशन पता होगा, नीचे डिफाइन भी किया उन्होंने। 13 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स रिमाइंडर 3। वी से दैट 13 इज 3 mod, मतलब 13 इज इक्वल टू 3 व्हेन डिवाइड बाई 5। 13 और 3 में रिमाइंडर सेम आएगा जब 3 से डिवाइड करो, तो सेम रिमाइंडर पे हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट मतलब है, ठीक है ना। तो 13 इज
3 mod 5 is written as this. 13 is 3 mod 5. So यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, a is 1 mod 19. सो हम कह सकते हैं a किस फॉर्म का है, 19k + 1, और इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, a को 19k + 1 या फिर 25 लैम्डा कह दिया. सिमिलरली b इन्होंने दे रखा है 19 अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा लैम्डा के सारे इंटीजर्स हैं, 25 बीटा + 1, ठीक है. और c इन्होंने दे रखा है 19, ठीक है, कुछ इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ले लेते हैं. 19 गामा + 4 इज इक्वल टू फिर सेम एज 25 डेल्टा + 10, कुछ इस तरह से. तो हमें ABC निकालना है जो कि सारे 475 से छोटे हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? देखो सी 25 and 19 आर को प्राइम नंबर्स. GCD ऑफ 25 and 19 इज़ 1. ये जो रिलेशन है, जब भी एक देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड बीज़ाउट्स थ्योरम, आई मीन यूक्लिडियन एल्गोरिथम से भी इसको हम दिखा सकते हैं कि इसका GCD, मतलब चलो GCD तो 1 है ही, और इसमें देयर एग्जिस्ट, मैं जिस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, बीज़ाउट्स थ्योरम. ये बहुत बेसिक नंबर थ्योरी में थ्योरम है जो कहता है कि if GCD of A and B is 1, A and B are co-prime, then there exists definitely there exists some x and y जो कि इंटीजर्स हैं, such that ये पक्का होगा कि उसके GCD के इक्वल आएगा. GCD 1 है यहाँ पे, तो AX + BY इज इक्वल टू 1 आएगा. यहाँ इनफैक्ट ये गिवन है, हम ये कई बार हमें ये जैसे ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली कि किस आई मीन x एंड y के लिए 25 and 19 में, जैसे x यहाँ पे 16 है और y 21 है, तो ये रिलेशन गिवन है, ये हमें हेल्प करेगा. अदरवाइज ये रिलेशन निकालना पड़ सकता था. सो बच्चों ये यहाँ पे गिवन है. चलो इसको हम बीज़ाउट्स थ्योरम यहाँ पे तो अब यूज़ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये हेल्प करेगा हमें जल्दी आंसर ढूंढने के लिए. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा ए की. इस इंफॉर्मेशन के बेस पे सीधा दिख रहा है कि हम अगर 19k + 1 की बात करें, कमिंग टू ए, फॉर ए क्या करना है, मैं इसी रिलेशन को लिख सकता हूँ सीधा 19 × 21 + 1, इसको 1921 को राइट में लेगा, इज इक्वल टू 25 × 16. सो क्लियरली ए इसी फॉर्मेट का है. देखो आप, ए इसी फॉर्मेट का, तो यहाँ से एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है फॉर्मेट, यानी के की वैल्यू इज 21, के जो है वो 21 आ रहा है, और लैम्डा जो है वो 16 आ रहा है. तो यहाँ से ना सीधा पता लग रहा है कि जो हमारा ए का वैल्यू है A is any one of the two side, that is 400. ऑलराइट बच्चों, नाउ कमिंग टू बी पे आते हैं. ये बहुत इजी होगा इस हिसाब से क्वेश्चन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ. सो B इज ऑफ द फॉर्म 19 अल्फा और 25 बीटा + 1, और C हम बाद में देखेंगे 19 अल्फा 25 बीटा + 1. अब देखिए इसी रिलेशन को फिर से मैनिपुलेट करें तो अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, मे बी निगेटिव हम देख सकते हैं, लेकिन B हमें पॉजिटिव रखना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. बट ओके, फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट देखूं तो +1 करना है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 19 × -21 कर देता हूँ. ठीक है, ये 19 अल्फा हो गया, और 25 × -16 25 बीटा देख रहे हैं आप यहाँ पे. ओके, +1 कर देते हैं इसको. ये फॉर्मेट तो आ गया. तो ये जो फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट
इसका तो वही है 19k अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 बीटा प्लस 1 टाइप, है ना। तो यहाँ से जज कर सकते हैं कि जो हमारा जो b का वैल्यू है वो अगर निगेटिव अलाउड होता तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ b इज एनी वन ऑफ द टू साइड्स, राइट। बट हमें फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द फॉर्मेट वी कैन ओनली टेक द मल्टीपल्स ऑफ 19 into 25 both the sides. If you add or subtract the multiples of 19 into 25 both the sides, the format is not going to be changed. ठीक है, adding 19 into 25 है ना, k कह लो both sides, format is not, क्योंकि देख रहे हैं आप 1925 ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन 19 का मल्टीपल, राइट हैंड साइड इज अगेन 25 का मल्टीपल प्लस 1, नॉट गोइंग टू चेंज। तो आपको जो भी करना है, इधर इस तरह की थ्योरी ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है, इज वेरी फेमस नंबर थ्योरी, उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो सीधा सीधा 20 यहाँ पे सो हम ले सकते हैं कि जो b है वो कोई एक साइड ले लो, 19 इंटू -21 प्लस 475 ना, 19 इंटू 25 इज 475, 475k है। तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमें वी हैव टू कीप इट, तो इन दिस सेक्शन ना लेस देन b लेस देन 475, तो 475 है, तो मैं जैसे 475 को लिख रहा हूँ 19 इंटू 25, तो ये आ रहा है 19 इंटू 19 कॉमन लीजिए 25k माइनस 21, तो ऑब्वियसली मैं k को 1 ही लूँगा, तो 1 लूँगा तो यहाँ पे सीधा जो रिज़ल्ट आएगा वो इंटू 4 कर देंगे, दैट इज 76 एट k इक्वल टू 1। इसी सेक्शन में कि जीरो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और 475 से छोटा है। सो b की वैल्यू फाइनली बच्चों इज 76। नाउ हमारे पास a एंड b आ गया, और अब यहाँ पे मैं c के लिए ज़रा ट्राई करूँ, तो c जैसे 19 गामा प्लस 4 25 डेल्टा प्लस 10, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 19 गामा प्लस 4 और 25 डेल्टा प्लस 10 था, ये था ना, एक बार चेक कर ले, 25 डेल्टा प्लस 10। एंड हमें ध्यान से देखें कि a मिला है 19k प्लस 1 फॉर्म का, b है 25 बीटा प्लस 1। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं a में टू मेक 19 गामा प्लस 4, देखो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह के फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। सो 19 गामा, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी ये क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम थोड़ा फ़ायदा ले रहे हैं, आई मीन वी आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो 19 into 25 की जो वैल्यू है वो भी 475 से छोटे हमें नंबर ढूंढने तो हेल्प कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे C जो है कुछ 4a टाइप की चीज़ है। अब चलो 19 लैम्डा प्लस 4, लेकिन फिर हमें ये भी कंफर्म करना है कि 25 डेल्टा प्लस 10 का भी आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 4a प्लस 10b की बात करूँ, अच्छा 4a प्लस 10b अगर करूँगा, सी थिंक अबाउट 4a प्लस 10b, 4a प्लस 10b के बारे में ज़रा सोचिए। फॉर c हम यहाँ पे c के लिए चेक कर, तो 4a में क्या होगा कि दोनों का यूज़ है, देखो 4a जब करोगे तो 19 का मल्टीपल प्लस 4 आ जाएगा, एंड इसमें 25 ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो 25 के हिसाब से अगर आप देखें तो मतलब 10b कर रहे हैं, तो 10b में ये 10b मतलब 25 का मल्टीपल प्लस 10 आ रहा है। तो ओवरऑल 4a प्लस 10b को अगर मैं चेक करूं तो ये मॉड 19 के हिसाब से क्या आ रहा है, मॉड 19 के हिसाब से, तो 19 का मल्टीपल प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, एंड इट लीव्स रिमाइंडर, ऑलराइट। सो मतलब सीधा है 4a इज दिस एंड 10b इज दिस,
चलो मैं 4a प्लस 10b नेक्स्ट पेज पे लिखे दिखाता हूँ. 4a प्लस 10b. अच्छा हमें a था, एक बार देखें, एक बार 19k प्लस 1, 19k प्लस 1 और 25 लैम्डा. b था हमारे पास 19 अल्फ़ा और 25 बीटा, 19 अल्फ़ा और 25 बीटा प्लस 1. तो मैं अगर जैसे बात कर रहा हूँ कि हमें 19 लैम्डा प्लस 4 चाहिए या 25 डेल्टा प्लस 10. इफ़ आई टेक कंसीडर 4a प्लस 10b, इसको सोचिए आप क्या आ रहा है. ये 19k प्लस 4 फॉर्म का आ रहा है, ठीक है. और मतलब 4a और 10b की बात करते हैं. एक मिनट, ये 4a इज ऑफ दिस फॉर्म, तो इसमें 4a प्लस 10b, 4a और 10b 25. और ये कितना है, या फिर देखो अगर मैं इस दोनों को लेता हूँ, 4a इज 19k प्लस, और 10b में आप देखिए कि ये लेके चलेंगे ना. तो अगर मैं 19 के हिसाब से चल रहा हूँ तो ये 1 मतलब देखो b में यहाँ पे करूँगा तो 19 के आ रहा ना कुछ, 19 के, और ये 4a है. तो ये फाइनली क्या आ गया. या फिर मैं अगर 25 के हिसाब से चलूँ तो 25 लैम्डा, तो 4a का मतलब है 100 लैम्डा, यानी 25 लैम्डा 1 कह लें, ठीक है, k1 कह लिया, या अल्फ़ा 1 कह लिया, ठीक है. 10b एंड ये 25 लैम्डा 1 प्लस 10b इज अकॉर्डिंग टू 25, सो इट इज़ 25 बीटा 1 प्लस 1, 10 प्लस 10. आर यू गेटिंग इट दिस यहाँ से. तो ये आ रहा है. तो देखिए इसमें क्लियर है कि हम दोनों स्टाइल में चल रहे हैं. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इट इज़ डेफिनेटली 4a प्लस 10b जो है वो 19 मतलब इज़ डेफिनेटली वन ऑफ सच नंबर्स जो c के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है. दैट इज़ 4 mod 19 एंड इज़ ऑल्सो 10 mod 25. सो डेफिनेटली c जो है वो डेफिनेटली सो यहाँ पे कह सकते हैं c इसी कैटेगरी का है. 4a प्लस 10b फॉर्म का है इन द फॉर्म ऑफ दिस माइनस, बट हमें c ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप c लेस दैन 475. 25 इंटू 19, अगर मैं दोनों तरफ इन नंबर्स में आप 25 इंटू 19 अगर ऐड करते हो तो द फॉर्म इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज 25 इंटू 19 में दोनों केस में 19 का भी मल्टीपल है, 25 का भी मल्टीपल, 25 इंटू 19 इज मल्टीपल ऑफ दैट. तो यहाँ पे 25 इंटू 19 कुछ कह लें कि हमें k टाइप का ऐसे ले सकते हैं. c इस फॉर्म का होना चाहिए. तो ये फाइनली 4a कितना रहेगा. वैसे a की वैल्यू क्या थी, आई जस्ट फॉरगॉट. a की वैल्यू इज़ 400 एंड b की वैल्यू इज़ 76. सो ये था 400 और ये था 76. So finally it is 400 into 4, and that is 1600, and the 10b is 760 minus ये था 475, I think 475 है ना, ये 429 into 15, 475k. So ये आ गया 2360 minus 475 k. So we have to find c less than 475 positive number. तो k जैसे मैं अगर 3 लेता हूँ तो छोटा हो जाएगा, ये काफ़ी 475 से बड़ा आ जाएगा शायद, है ना, 1200. हाँ, और अगर मैं 4 लेता हूँ तो सुटेबल है. 5 लेने पे अगेन इट इज़ नेगेटिव. सो 5 लेने पे इट इज़ कमिंग एज 2000. या इट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी. सो डेफिनेटली ये जो c होगा हमारा 2360 माइनस 475 इंटू 4, जो कि इस रीजन में आ रहा है, k इक्वल टू 4 पे आ रहा है, उस सेक्शन में आ रहा है. दैट इज़ 2360 माइनस 16 एंड 300, तो ये आ रहा है 1900. दैट इज़ फाइनली 460. दिस मस्ट बी द
आंसर सी की वैल्यू 460 आ गई। फाइनली आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आ रहा है ए इक्वल टू 400, बी इज इक्वल टू 76 एंड सी इज इक्वल टू 460। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इसके आंसर है। बट हमें थोड़ा हेल्प मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो एक चाइनीज़ रिमाइंडर से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, जैसे अदरवाइज लिखा है तो ओके अगर इसका आइडिया है तो आप यहाँ पे। सो कमिंग टू द एकलव्य प्रोग्राम, अमेजिंग यू नो एज एवरी टाइम वी से कि, और आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, इसके बारे में देखें। सो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एकलव्य जो हमारा वेदांतु का है इज़ द बेस्ट इन द कंट्री। ओके, आप सर्च करें गूगल पे, फीडबैक ले सकते हैं हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट देयर आर सम यूजफुल लिंक्स, राइट, जैसे नोटिस बोर्ड है हमारा यहाँ पे, तो इसमें आपको सारे जो कमिंग बैचेस आने वाले हैं या उसके डेट्स एंड ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट फ्रॉम हेयर। नोटिस बोर्ड पे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन लिंक है ये, और क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके सारी डिटेल ले सकते हैं इफ़ यू आर जेईई एस्पिरेंट 2023। क्योंकि जो CMI एंड KVPY या ISI के पेपर्स हैं ये IIT JEE के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो आप इन लेक्चर्स को आप इन वीडियोस को फॉलो करें। और यहाँ पे आपको एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, इफ़ यू आर जेईई एस्पिरेंट 2023 यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन हेयर ऑल्सो। स्पेशली यहाँ पे मिल सकता है 2024 के एस्पिरेंट है तो यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन हेयर ऑल्सो। वी इम्पैक्ट चैनल हमारा बच्चों यहाँ पे, इसमें हमने काफ़ी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जेईई IIT JEE के प्रीवियस सो मेनी ईयर्स के, है ना, 3 to 4 ईयर्स के जो करंट अभी जेईई के हैं, 5 ईयर्स मान के चलो, हाँ 5 ईयर्स के तो दिए ही हैं मिनिमम। वो हमने क्वेश्चन वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा इंडिविजुअल 1 by 1, ऑल डिटेल सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन कह सकते हो। सारे एनालिसिस किए गए और कहीं पे यू विल नॉट गेट सो फाइन सोल्यूशंस। ऑलराइट, KVPY जो पहले अभी एग्ज़ाम हो रहा था तो वहाँ पे KVPY के अच्छे क्वेश्चन हैं जो जेईई में हेल्प कर सकते हैं। ISI के पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और CMI का जैसे आज आपने देखा द फर्स्ट पार्ट 2020 देयर वर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा 1 by 1। नाउ कमिंग टू द टीचर क्वेश्चन, ओके, सो मोस्ट आई मीन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द दीज वीडियोज़। टीचर क्वेश्चन आप ट्राई करते होगे, इसमें हमेशा हम अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं। फ्रेश प्रॉब्लम आप सॉल्व करो और उसको हमें सेंड करो। यहाँ पे क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल fx पॉलिनोमियल रिलेटेड x raised power 2007 plus 17 x raised power 2006 plus 1 has distinct zeros। 2007 डिग्री है तो 2007 रूट्स ही होंगे, R1 R2 R3 up to R 2007। पॉलिनोमियल px of degree 2007 has a property that another polynomial px, ये तो fx था, अब दूसरा पॉलिनोमियल px है जिस जो कि I mean if R1 is, जैसे R1 is a root of fx, then px के रूट्स हैं R1 plus 1 by R1। जैसे मान लो कि R1 2 है, सपोज एक बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो px का एक रूट 2 plus 1 by 2 दैट इज 5 by 2 आएगा। ये कह रहा है कि px के रूट्स हमें fx के रूट्स के टर्म में मालूम है फॉर ऑल j 1 to 2007, ठीक है, तो ये यहाँ पे गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ 259/17 इंटू, ये इंटू का साइन होगा यहाँ पे, इंटू P1 अपॉन P of -1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसको ट्राई कीजिए, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। सो इफ़ यू कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन send us this your solution to this email address eklavyaSupport@vedantu.com। alright, and टीचर क्वेश्चन में सब्जेक्ट नेम जो है लिखना मत भूलिएगा आफ्टर सेंडिंग द सॉल्यूशन, आफ्टर आई मीन सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमें जो सेंड करना है आपको वो इस पे करना है, और यहाँ पे डोंट आई मीन फॉरगेट टू राइट द सब्जेक्ट नेम, मैथ्स लिखना आपको सब्जेक्ट नेम पे। विल चेक योर सोल्यूशन एंड इफ यू लाइक इट विल रीच आउट टू यू ऑन द सेम email ID थ्रू which you send the solution। जैसे यहाँ पे if you find your solution good and interesting and I mean काफ़ी अच्छा है solution, तो definitely I mean we'll try to reach to you and you can be the part of Eklavya program or Eklavya program। Okay बच्चों, so this was all about today's session। So there were 10 questions, we discussed them one by one। Just go through, आप एक बार पॉज करके सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, देन आप देखिए कि कितने सही हो रहे हैं और
एनालिटिकली चीज़ों को देखिए आप. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीक वेयर विल डिस्कस द पार्ट बी ऑफ द सेम ईयर, CMI 2020. Take care.